recruitment experience in corporates like NIIT, ICFI, and Oakbrook Business School. She holds an international experience of working in USA for 3 years for a recruitment firm. Since last 4 years, her firm has placed more than 300 students in banking sector, Pan Gujarat. Ms. Tanwar has 9 years of experience in conducting seminars, workshops in colleges and has trained more than 5,000 students. This was all about rich experience of Ms. Shambhavi Tanwar. The list is endless. We are so much glad to have you, ma'am, here. It's our Pleasure is mine. privilege. Yeah, it's our privilege to gain insights from such a dynamic, versatile, and an extrovert speaker. I, Dr. Riddhi Ambawale, on behalf of JCI Ahmedabad Vibrant, welcome you, ma'am, Thank on you. this fifth day of Skill Blast program organized by JCI Ahmedabad Vibrant. Over to you, ma'am. Thank you very much. Should I say present now? Yes, ma'am. Thank you. Can everyone see the presentation? Yes, ma'am. It is visible. Okay. ठीक है. So we'll start directly. Sure, ma'am. Okay. Hi, good morning, everyone, or rather, good afternoon, everyone. Um, you just heard my brief introduction. I'm Shambhavi, and I really like to work with students. That's my passion. Training did not come to me as a career. Training came to me as a passion. When I was doing recruitment, that time I realized that I need to, give some bit of training also to students so that they can get jobs fast, so that they can clear their interviews, so that they can stay in one job for a longer period of time. And these all challenges that I faced in recruitment that brought me to training. So training is an accident, right? But once I started training, I realized this was my passion. I just felt that okay, शायद मुझे इसमें ज़्यादा मजा आ रहा है than working into a corporate or recruitment industry. So here I am. Thank you very much, Kruti Madam and the Institute to give me the opportunity to talk to your students and share my experience with them. So let us talk about office communication. I was told that आप लोगों का communication as a subject शायद हो गया, but still I still want to start with what exactly is communication, because जब हम बात करते हैं office communication के बारे में, तो office शब्द छोटा है, communication बड़ा है. स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ऑफिस छोटा है, कम्युनिकेशन बड़ा है. सो वैसा ही कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है जो बहुत इम्पैक्ट करता है कहीं एनीवे. वैसे ही ऑफिस में भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्युनिकेशन. आई एम श्योर आप सबको पता है कम्युनिकेशन क्या है. ट्रांसफरिंग ऑफ योर आइडियाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड अदर्स. यहाँ पे सही बोलूं तो मैं ये शब्द फीलिंग्स है ना उसको अंडरलाइन करना चाहूंगी. कम्युनिकेशन में ये पूरा जो डेफिनेशन है जहां पर हम बोलते हैं हमारे आइडियाज, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा नॉलेज, हमारा थॉट और हमारी फीलिंग्स को हम ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. और मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन में फीलिंग शब्द को अंडरलाइन कर दो या बोल्ड कर दो. सोचो क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ. बिकॉज कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करता है वो आपका फीलिंग होता है, आपका इमोशंस होता है. 2 मिनट के लिए यहाँ पे सोचेंगे, क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या मैं गलत बोल रही हूँ. अगर आप बहुत अच्छे मूड में होते हो तो आपको क्या लगता है, मैं जग जीत लूंगा. लगता है कि नहीं, क्योंकि आपका मूड अच्छा है तो आपको लगता है आप बहुत ही अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, राइट. फिर व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, हमेशा कम्युनिकेशन
दो टाइप से होता है, दैट इज एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, राइट। सो कम्युनिकेशन में अभी के लिए इतनी ही दो चीजें याद रखनी है आपको, कि कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इमोशंस एंड फीलिंग, and second, there are two people in communication, and this communication can have many forms. बहुत ज्यादा फॉर्म्स अवेलेबल है। अगर मैं आपको बताऊं कौन से फॉर्म्स है, सो दिस आर द फॉर्म्स, और शायद आपने ये सब चीजें कवर कर ली, राइट। इसलिए झड़प से हम इसके बारे में समझेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें कहां आती है, क्या चीज से आप डरते हो when you are talking to when you are trying to verbal communication? I want some answers. जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हो तो सबसे ज्यादा किस बात से डरते हो? भूल जाओगे बोलना? चैट बॉक्स पे आपको लिखना है। स्टूडेंट्स, मेरा सेशन एक तरफा नहीं होगा। सब अगर आप आराम से बैठे हो पाँव पे पाँव रख के कि ओके मुझे 1 घंटा सुनना है, तो थोड़ा मुश्किल है, आपको लिखना भी पड़ेगा। बताइए, वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? किसने लिखा है कॉन्फिडेंस, किसने लिखा है स्टेज फियर? अरे स्टेज नहीं है यार, चेयर पे बैठे बैठे बात कर रहे हो। थॉट्स, हाउ टू कम्युनिकेट, ओके। रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स, आई विल टेक दैट, बिंगो। लो कॉन्फिडेंस, सही में क्या वर्बल कम्युनिकेशन में आप इसलिए डरते हो बोलने के लिए कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं कैसे बोलूं? सोचो आप अपने मम्मी से ही बात कर रहे हैं, वहां पे भी आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। हम कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं ना, तो हम सोचते हैं बड़ा सा स्टेज, 100 लोग खड़े हैं और हमसे बात लैंग्वेज प्रॉब्लम मैम, लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम। डू यू वांट टू टेल मी दैट आपको ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश में नहीं बात कर रहा हूं तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूं? आर यू ट्राइंग टू टेल दैट? नो मैम, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, मैं हिंदी में कर रहा हूँ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना दोनों के समझने में, बोलने में। तो आपने बोला मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके। अपना माइक्रोफोन बंद करिए। यस, जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमको डर लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग का, या फिर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन का, राइट। और ये बात सच है। verbal communication major tension या major problem is that I should not be wrongly interpreted, right? उसके लिए आपको बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जहां पे वर्ड्स भी आए, वहां पे इमोशंस भी आए, आपका नॉन वर्बल आप कैसे बोल रहे हो, बहुत कुछ आता है। देयर इज अ लॉन्ग थिंग, बट व्हेन यू टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन यू आर ऑलवेज वरीड दैट आई शुड नॉट गेट मिसअंडरस्टूड। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शब्द को अंडरलाइन करेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑब्लिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में रख सकती हूँ। ऐसा क्यों रख सकती हूँ मैं? एचआरस, मैं कंपनीज की एचआर की बात कर रही हूँ। जब वो बोलते हैं कि यार ये बंदा जो है ना राम, इसको अपने इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, तो वो क्या बोल रहा है? क्या है इंटरपर्सनल स्किल्स? थोड़ा अच्छी तरह से बताओ सर, क्या चेंज करूं मैं अपने आप में? तो भाई अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ठीक कर। इफ यू डू नॉट हैव गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, दैट सेज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नीड्स सम फाइन ट्यूनिंग। अब इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, तो शायद कुछ लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, बिकॉज इस स्किल के बारे में हमने शायद बुक में कभी नहीं पढ़ा था। सो इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब how exactly are you been how exactly are you been gauged, या आपको आपके जो लोग हैं आस पास के, फिर वो मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड्स कलीग फैकल्टीज एनीबडी नेबर, कोई भी आपको आपके बारे में क्या धारणाएं बना के चल रहे हैं? what do people around you think about you? सही है गलत है वो छोड़ देंगे, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? हाउ आर योर इंटरपर्सनल स्किल्स? इन शॉर्ट,
हाउ आर योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑफिस एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा यही पे ही स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को प्रॉब्लम होता है। नहीं, फ्रेशर्स नहीं बोलूंगी, सबको प्रॉब्लम होता है। एवरीबडी फेसेस व्हेन यू डू नॉट हैव योर गुड इंटरपर्सनल स्किल्स और नॉन वर्बल स्किल्स आपके जब अच्छे नहीं है, तो आपके ऑफिस एनवायरमेंट में आपको प्रॉब्लम होगा। यू कैन नॉट फिट इन, यू कैन नॉट जेल इन, यू आर नॉट लाइकेबल। लोग आपको हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैंने ऐसे बोला ही नहीं है, आई डोंट वांट टू टेल यू दिस वे, आप क्यों समझ नहीं रहे हो। अगर आप ये शब्द यूज कर रहे हो ज्यादा, इसका मतलब आपके नॉन वर्बल स्किल्स अच्छे नहीं है, या मैं बोलूंगी आपके नॉन वर्बल स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा शार्पन करना पड़ेगा वो एक्स। और आई एम श्योर सब लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। अरे मैडम, મને તો કોઈ સમજતું જ નથી, હું કેટલું સરસ રીતે સમજાવું છું પણ આ સમજતા જ નથી। जब जब ये बोलो तब तब याद रखना कि नॉन वर्बल स्किल्स में कहीं पे लोचा है, राइट। चलो, बॉडी लैंग्वेज आई एम श्योर आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने पहले बहुत कुछ इसके बारे में सुना होगा। एंड ग्रूमिंग, ग्रूमिंग मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब, एनी थॉट्स, क्या आप चैट बॉक्स पे कुछ डाल सकते हो, एनी थॉट्स फॉर ग्रूमिंग। व्हाट इज ग्रूमिंग। ड्रेसिंग सेंस, राइट। आगे पर्सनालिटी, पर्सनालिटी तो भाई बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत कुछ आ गया। थोड़ा स्पेसिफिक, जैसे इन्होंने बताया ड्रेसिंग सेंस, आप कैसे कपड़े पहनते हो आपकी ग्रूमिंग बताती है। उसके अलावा बताइए व्हाट इज ग्रूमिंग। एनीथिंग, कुछ भी, कपड़े हो गए, पर्सनालिटी हो गई, फिर बैठने का तरीका, चलने का तरीका, राइट, ग्रीट करने का तरीका, हाउ डू यू ग्रीट, आपके बाल किस तरह से कटे हुए हैं, ग्रूमिंग, राइट। हाउ एग्जैक्टली इज योर नॉन वर्बल स्किल्स प्लस ग्रूमिंग इज द वे यू हैव, यू कैरी योरसेल्फ, आपने अपने आप को किस तरह से आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, दैट इज ग्रूमिंग। आपका नॉन वर्बल बहुत आ जाता है ना ग्रूमिंग में, जैसे कि आप बोल रहे हो तो कैसी पिच पे बोल रहे हो, व्हाट इज योर पिच। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। नॉन वर्बल स्किल्स आ गया, 3 टोन में हेलो सर बोला, गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन उसका मतलब बदलता रह गया, बदला कि नहीं। ओके, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रूमिंग। सो जब हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तब आपको ये देखना है कि आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा है, दैट इज लोग आपके बारे में जो धारणाएं लेते हैं वो सही है, यू आर नॉट रॉन्गली इंटरप्रिटेड। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू बॉडी लैंग्वेज बिकॉज बॉडी लैंग्वेज अपने आप में 2 घंटे का सेशन है। और आपका ग्रूमिंग प्रॉपर है, मतलब कहाँ पे कैसे कपड़े पहन के जा रहे हो, कहाँ पे कैसी नेल पॉलिश लगा रहे हो, कहाँ पे कैसी इयररिंग पहन रहे हो, कहाँ पे टाई पहन रहे हो, कहाँ पे ओवरकोट पहन रहे हो, यू नो, शूज कैसे पहन रहे हो, बैठे कैसे हो, हाउ आर यू सिटिंग, पोस्चर आपका कैसा है, दैट इज ऑल चेंजेस। घर पे हो तो अलग हो, ऑफिस में तो अलग हो, फ्रेंड के साथ हो तो अलग हो, राइट, दैट इज ग्रूमिंग। चलिए, यहाँ पे मैंने लिखा है दिस स्किल इज प्लेज अ मेजर रोल इन ऑफिस कल्चर। अगर आपने अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर लिया, इफ यू रियली वर्क ऑन योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच इज टफेस्ट, वर्बल कम्युनिकेशन कर लोगे, रिटन कम्युनिकेशन कर लोगे, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज टफेस्ट टू डू। एनीबडी कैन यू टेल मी व्हाई। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाई। Why is non-verbal communication the most difficult thing to do? Perception, किसने लिखा है? Anything else? क्यों ये बॉडी लैंग्वेज, ग्रूमिंग, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये सब इतना इम्पोर्टेंट होने के बाद भी why am I telling you it is very difficult? किसी और में चेंज नहीं करना है, हमको अपने में चेंज करना है, खुद में करना ही डिफिकल्ट है।
क्यों? Anybody else? ओके, लोग शब्द कम बोलते हैं, राइट? मैम ने लिखा है पीपल यूज लेस वर्ड्स, सो दे वांट यू टू ऑब्जर्व मी एंड देन दे टेक अप व्हाटएवर यू हैव टू अंडरस्टैंड। देख लो मुझे और खुद ही जज कर लो। मुश्किल है अपने आप को वैसा दिखाना जैसे लोग आपको देखना चाहते हैं। सबसे इजी वे, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन प्रॉपर, ओके? सबसे आसान क्या है? इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपने सामने आईना लेके चलो, जहां जाओ वहां। मैं कैसे बैठा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, यू कैन नॉट सी योर सेल्फ। देख सकते हो अपने आप को 24 घंटा? यू कैन नॉट। सो कभी कभी हम अपने नॉन वर्बल क्लूज ऐसे दे देते हैं जो हमको देने नहीं होते, लेकिन अपने आप ही दे देते हैं, बिकॉज अंदर मन में, दिमाग में, हार्ट में, इमोशंस में, यू नो, ये सारे जो फीलिंग्स होती है वो अपने आप आपका बॉडी बोल देता है। जैसे आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो अपसेट है, बहुत दूर है, हाँ, अंधेरे में, शक्ल भी नहीं दिख रही है, सिर्फ बैठा है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये अपसेट है। कैसे कैसे ऐसी दिव्य दृष्टि आ जाती है कि दोस्त अगर अंधेरे में बैठा है तो ये अपसेट ही है और ये खुश नहीं है, because the way his posture is, the way his hands are, the way his leg is, the way his neck is, गर्दन ऐसी है, ऐसी है, कैसी है, उससे आपको एक जजमेंट आता है अपने दोस्त के बारे में। दैट इज नॉन वर्बल क्लूज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सेल इन। अपने आप में एक अच्छा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डालना इसीलिए मुश्किल है, बिकॉज इट इज योर सेल्फ। वो आप खुद हो, आप उसको बोलते ना, फेक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डुप्लीकेट इट, यू कैन नॉट, you can fake yourself for 1 hour 2 hour, not for 24 hours, right? So आपके जो सोच, अगर मैं अपसेट हूं अंदर से, भले मैं आपके वहां पे स्माइल करूं, यू नो, नहीं नहीं, आई एम ऑल गुड, हाउस कामया, एक्सीलेंट, परफेक्ट, लेकिन ये स्माइल कितनी देर रख पाऊंगी मैं? ज्यादा देर नहीं, राइट? बिकॉज इनसाइड आई एम अपसेट, इनसाइड माय थॉट्स आर नेगेटिव, so they are going to come out, and once they come out, people start judging you, and they judge you, and you don't know people are judging you. Judging मतलब आपके बारे में इंप्रेशन लेना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ना, आप अपने फैमिली में या फ्रेंड्स को बोलते होंगे, मैं गुस्से वाला नहीं हूं, मुझे कब गुस्सा आता है यार, मैं तो कितना अंडरस्टैंडिंग हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। और सामने वाला इंसान बोल रहा होता है कि भाई तू नहीं है, तू गुस्से वाला है, तू सुनता नहीं है। होता है कि नहीं? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, राइट? बिकॉज हमारे नॉन वर्बल क्लूज आर लाउडर देन वर्ड्स। एनीवे, सो दैट वाज, और यहीं पे ही गड़बड़ है और यहीं पे सुधार की जरूरत है। सो ऑफिस एनवायरनमेंट में आपको 8 घंटे का काम करना होता है, और वो एक एनवायरनमेंट है जहां पे आप कोशिश करते हो कि आप अपना बेस्ट दो, ताकि आपका परफॉर्मेंस बेस्ट ही हो, which is the most important thing when it comes to communication in office. फिर बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, देयर इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, राइट? एंड वर्ड्स, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, रिटन हो, एनी काइंड ऑफ वर्ड्स आर माइटियर देन स्वॉर्ड्स। इसलिए शब्द को बहुत ही सोच समझ के यूज करना चाहिए कम्युनिकेशन में, वर्बल, नॉन वर्बल के रिटन, बिकॉज वो उसकी जो लाइफ है ना। अच्छा मुझे बता, मेरी कही हुए शब्द या मेरे कहे हुए रिटर्न वर्ड्स की लाइफ होती कितनी? लेट मी सी इफ यू कैन थिंक। शब्दों की लाइफ कितनी होती है, या लिखे हुए शब्दों की लाइफ या बोले हुए शब्दों की लाइफ, लाइफ होती कितनी? कैन यू कम आउट, बताओ मुझे।
1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कितना वक्त, कितना शब्दों, एक शब्द कितना जिंदा रह सकता है? चलो जल्दी, लाइफ टाइम। और कुछ? मैं ईशा से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा है लाइफ टाइम, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा व्याज भी करो ना भाई। Some words are lifetime. I'll agree with Mayank. Okay. मेरे हिसाब से वर्ड्स की लाइफ होती है जब तक सामने वाला जिसको बोला है ना, वो डिसाइड करता है कि उसको आपके शब्दों की लाइफ 5 साल करनी है, साल करनी है कि जिंदगी भर करनी है। इट डिपेंड्स अपॉन द अदर पर्सन। मुझे उसने बोला कि मैं बेवकूफ हूं, मुझे बेवकूफ बोला, ये बात मैं 5 मिनट में भूल सकती हूँ, 5 साल में भूल सकती हूँ, या 50 साल तक याद रख सकती हूँ कि उसने मुझे बेवकूफ बोला। So it depends upon the listener how much and for how long he wants to remember those words, right? So words are mightier than sword. So just be conscious when you use your words, right? चलिए आगे डिपेंड करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन फॉर्म्स है कम्युनिकेशन का। अभी आप देखो, हम अभी विजुअल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं कि नहीं? मैं आपको पीपीटी दिखा रही हूँ, मैं आपको इमेजेस अगर दिखाती, मैं आपको वीडियो दिखाती। सो विजुअल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में या ऑफिस कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे जाके। जैसे अब आप ऑफिस एनवायरनमेंट में जाओगे, आपको वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ेगा। हम देखेंगे इसी सेशन में कि विजुअल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन कब यूज करते हैं। अक्सर विजुअल कम्युनिकेशन हम तब यूज करते हैं जब आपको समझाने के लिए कुछ दिखाना पड़ता है। इफ यू वांट टू टेल और सी, अगर मुझे कुछ दिखा के आपको आसानी से मैं समझा सकूं तो मैं विजुअल कम्युनिकेशन का यूज करूंगी। लेकिन अगर मैं वो चीज आपको दिखा नहीं सकती, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो फिर मैं दूसरे कम्युनिकेशन का माध्यम यूज करूंगी। ओके, लेट अस गो अहेड। कम्युनिकेशन आपका, इट इन्फ्लुएंसेस योर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स। आप कैसे बात करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपके बारे में लोग क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे। कम्युनिकेशन ये डिसाइड करता है कि आपकी लर्निंग हैबिट्स क्या है, आप कितना फास्ट, कितना स्लो या कैसे सीखते हो, वो आपका कम्युनिकेशन डिसाइड करता है। कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन डिसाइड करता है कि आपके और आपके बॉस में रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो किसी भी बिजनेस में और इंडस्ट्री में मस्ट है, मस्ट। एंड अनफॉर्चुनेटली हम पूरा 1 साल पढ़ा सकते हैं कम्युनिकेशन। ओनली कम्युनिकेशन कैन बी टॉट फॉर 1 year टू मास्टर इट। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न कम्युनिकेशन in that way itself, because this is a key point in job market or in any kind of growth that you want, personally or professionally. So don't take communication lightly. मुझे याद है मैं एक ऐसे ही सेशन ले रही थी कम्युनिकेशन का, तो मुझे किसने बताया, अच्छा मैडम आप कम्युनिकेशन का सेशन ले रहे हो, सो आप क्या करवा रहे हो कम्युनिकेशन में? सिग्नल्स ले रहे हो, रेडियो करवा रहे हो? मतलब वो इंजीनियरिंग के कम्युनिकेशन में चले गए। मैं कि नहीं, कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल, बात कैसे करना, ये क्या सीखना है, बात कैसे करना, दैट्स नॉर्मल थिंग, हम रोज तो बात करते हैं। लेकिन वहीं पे तो प्रॉब्लम आता है, राइट? रोज हमको प्रॉब्लम आता है बिकॉज वी आर मेकिंग स्मॉल मिस्टेक्स व्हेन वी ट्राई टू कम्युनिकेट। चलो, ऑफिस कम्युनिकेशन कैन बी, ऑफिस कम्युनिकेशन को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी सोचते हैं। व्हाट इज ऑफिस कम्युनिकेशन? कि ऑफिस में कैसे बात करना, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, ठीक है, जहां पे हमको एक सिचुएशन समझनी पड़ती है। सबसे पहले सिचुएशन समझने के बाद कम्युनिकेशन कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज करना है, वो हमको समझना है। एक्शंस,
मैं कैसे बोलूंगा, व्हाट एक्शन विल आई टेक, वो समझना है। फिर डिजाइन द चूजन मैसेज, वर्ड्स, वर्ड्स क्या यूज करूंगा, मुझे डिजाइन करेगा करना पड़ेगा शब्द को मैसेज में, और फिर मैं उसको डिलीवर कैसे करूंगा, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वर्बल, नॉन वर्बल, कैसे डिलीवर करूंगा मैसेज। सो now we'll talk about office communication, and in that office communication we'll try to understand that all these things we have to keep in mind when we talk, right? और ऑफिस में नहीं, इवन घर पे भी आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होती है तब, राइट? चलो, वर्बल कम्युनिकेशन, हम यहाँ पे फॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल भी होता है, राइट? ऐसे ही फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, ऑफिस के कलीग के साथ बात कर रहे हो, तो कभी कभी कैजुअल बैठे हो, पान के गल्ले पे बैठे हो, या कहीं सीढ़ियों में खड़े हो, या कहीं कैफे में बैठे हो, तो एक अनफॉर्मल एनवायरमेंट है। अगर एनवायरमेंट अनफॉर्मल है तो बात भी अनफॉर्मल इनफॉर्मल ही होती है। अगर एनवायरमेंट फॉर्मल है तो बात भी फॉर्मल ही होती है। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू रिमेंबर, एनवायरमेंट डिसाइड करता है कि मेरा कम्युनिकेशन अब फॉर्मल होने वाला है कि इनफॉर्मल होने वाला है, राइट? जैसे अगर मैं मीटिंग रूम में हूं, मैं मीटिंग रूम में इनफॉर्मल बातें नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम इन द मीटिंग रूम। मैं ऑफिस में हूँ, अपने डेस्क पे हूँ, मेरे बॉस मेरे बाजू में खड़े हैं, दैट इज व्हाट इज एन एनवायरमेंट। माय बॉस इज जस्ट सिटिंग और स्टैंडिंग नियर मी, आई हैव टू स्पीक फॉर्मली, आई कैन नॉट बिकम इनफॉर्मल। एनवायरमेंट डिसाइड करता है कम्युनिकेशन का मेथड क्या हो, राइट? थोड़ा फास्ट भी जाऊंगी और नए कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, कोशिश करना मेरे साथ रहने की। सबसे पहले कम्युनिकेशन में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब ध्येय कम्युनिकेशन का क्लियर होना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने अपने लाइफ में देखा है जो बात करते हैं ना तो बिना वजह बात करते, मतलब मुझे भी समझना पड़ता है कि ये बोल क्या रहा है, बात क्या कर रहा है, व्हाट इज द एजेंडा, व्हाट इज द आइडिया, व्हाट आर यू स्पीकिंग एंड व्हाई आर यू स्पीकिंग। हुआ है कि नहीं आपके साथ भी? मिले हैं ना ऐसे लोग, जब वो बात कर रहे होते हैं आपको सिर पैर कुछ समझ नहीं पड़ता है, फिर उनको पूछना पड़ता है उनको कि क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाई आर यू सेइंग, पर मने केम के छे, होता है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट क्लियर। जो इंसान आपसे बात कर रहा होता है, जब उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है, सामने वाले इंसान को लगेगा ये मुझसे बात ही क्यों कर रहा है। ओके, सो जब हम ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सो जब भी हम बात करना शुरू करें, आपके दिमाग में उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। चलो एग्जांपल लेते हैं। आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड आपके साथ, आपके काम के लिए आपके साथ चले। कोविड का टाइम है, कहीं भी कोई जा नहीं रहा है, बट स्टिल यू वांट दैट ही शुड कम विथ यू फॉर योर वर्क, and he has to also convince his family कि मुझे जाने दो, right? So that is a communication. Objective क्या है? I want your company, I need your help, right? And please come to that work. Objective क्या आप इसको ऐसे शुरू करोगे, शू करे जाए, चलाई जाइए, चलो फोन मुको, क्या ये कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? क्या आपको लगता है सामने वाले इंसान को पता चला कि तुम किसके लिए बोल रहे हो, क्यों बुला रहे हो, कितना अर्जेंट है? कम्युनिकेशन वॉज वेग, अधूरा था। શું કરે છે? કશું નહીં કરતો, આઈ જા ઘરે, કામ છે, हाँ આવું 1 કલાક પછી, बताया नहीं ना अभी आप, राइट? ऐसे ही कभी कभी
कम्युनिकेशन मिसफायर हो जाता है जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है. गिविंग एन एग्जाम्पल, શું કરે છે? કશું નહીં કરતો, અહીંયા આવી જા. ये था दूसरा एग्जाम्पल. શું કરે છે? કઈ નહીં કરતો હે, તું તો એમ પણ નવરો જ છે. શું કરતો હતો? કાલે પણ કશું નથી કરવું, પરમ દિવસે પણ નથી કરવાનો, તારો તો કશો ધ્યેય જ નથી, મને ખબર છે ને, તો એમ જ બેસવાનો છે. કઈ નહીં કરતો, રહેવા દે, તારી મમ્મી બોલતી હતી, મારી મમ્મી પણ બોલતી રહે છે કે તું કશું નથી કરતો. સારું ચાલ તું આવી જા, કામમાં ને કામ છે. क्या वो आएगा? जरूरी नहीं आएगा. હું તારા કામ માટે છું, फोन મૂક, तो क्या फोन रखने को बोलेगा. सो कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है तो आपको उसको इमोशनली समझाना है. શું કરે છે ભાઈ? અરે એક કામ હતું, ત્યાં જવાનું છે, મમ્મી કહે છે તું કોઈના જોડે લઈ જા, આવીશ તું? તારા મમ્મીને પૂછી જો તો, તને આવવા દેશે? પ્લીઝ આય ને યાર, તારી બહુ હેલ્પ થઈ જશે. ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर कि कैसे भी करके आप अपने दोस्त को यहाँ पे बुलाओ ताकि आप वो काम खत्म करो. जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है, क्लियर मतलब क्लियर, जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है तब आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन पे इमोशंस और फीलिंग्स का मार आता रहता है. क्यों? आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं. सो कोशिश करो अपना ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन के दौरान, फॉर्मल कम्युनिकेशन के दौरान क्लियर रखो. यूजुअली मीटिंग्स में आपको लगेगा कि आप कुछ बोलना चाहते हो, आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपना ये पॉइंट प्रूव करूं, और लोग आपको तोड़ देंगे, रोक देंगे, चुप कर देंगे, आपको बुरा लग जाएगा, इमोशनल हो जाओगे आप, और आप अपने ऑब्जेक्टिव को भूल जाओगे. यू विल फॉरगेट that what was your objective behind this communication, behind attending this, right? So कभी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन चालू करो, तुरंत दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इस कम्युनिकेशन से मुझे क्या चाहिए, मेरा ध्येय क्या है, what I want. क्लियर? फिर एस्टैब्लिश अ लिंक. एस्टैब्लिश अ लिंक मतलब क्या? एक कनेक्शन बना, मेरे दिल से तुम्हारे दिल तक का एक कनेक्शन. क्यों मैंने वर्ड बोला दिल? बिकॉज कम्युनिकेशन में फीलिंग और इमोशंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. याद है शुरुआत में मैंने बोला था. सो कम्युनिकेशन में एस्टैब्लिशिंग अ लिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो और अगर आपने लिंक एस्टैब्लिश नहीं किया, आपका कम्युनिकेशन का फेल होने के चांसेस बढ़ जाते. सो एक लिंक बना, जैसे अपने दोस्त को फोन करते हैं, કેમ છે અલા? મજામાં? ઘરમાં બધા કેમ છે? કેવું ચાલે છે? अरे આવું છે यार, આવું છે यार. क्या किया हमने? एक लिंक बनाया. डायरेक्टली फोन करके ऐसा बोलते अरे काम છે यार, आ છે તે છે, आई जा जल्दी. हम एक लिंक बनाते हैं. फिर इमोशनलाइज द कन्वर्जेशन. कन्वर्जेशन के अंदर जो इमोशंस चाहिए सही तरीके से वो डालो. सेंड अ मैसेज क्लियरली बाय ब्रेकिंग द टास्क. अपना टास्क, जैसे मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया था, सो मेरा टास्क क्या है? दोस्त यहाँ पे आए, टाइम पे आए, मेरे साथ चले, वो काम भी खत्म होके वापस घर पे भी टाइम पे आ जाए. सो 4 टास्क है मेरे एक कम्युनिकेशन में, राइट? सो जब भी आप बात करते हो तो जो भी કેટલા વાગે જવાનું છે, ત્યાં કેટલી વાર લાગશે, પાછા કેટલી વારમાં આવીશું, હું ઘરે કેટલી વારમાં પહોંચીશ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ, दैट इज रॉन्ग और इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल और देने वाली हूँ. जस्ट ट्राई टू सिंक इनटू द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू. एंड द लास्ट इज बी अ एक्टिव लिसनर. जब भी कम्युनिकेशन में 2 लोग चाहिए, अगर ये बोल रहा है तो आपको एक्टिवली सुनना है, और आप जब सुनते हो तो क्या सुना है वो आपको रिपीट भी करना है. ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, इसने सुना और रिपीट किया, समझा? तब जाके ही बोल सकते हैं कि ये जिसने सुना ही इज एन एक्टिव लिसनर. आई एम श्योर जब आप लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा था
तब आपने एक्टिव लिसनिंग भी पढ़ाई होगा। एक्टिव लिसनिंग आज की जनरेशन के बच्चों में कम से कम होता जा रहा है। आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ दैट हाउ टू लिसन, नॉट लिसन, हाउ टू लिसन एक्टिवली, राइट? सो कम्युनिकेशन में ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो, लिंक एस्टेब्लिश करो, इमोशंस को एस्टेब्लिश करो, कन्वर्सेशन में मैसेज को कम से कम शब्दों में तोड़ तोड़ के, मतलब ब्रेक द टास्क एंड स्पीक, ओके? और लास्ट वाज बी अ एक्टिव लिसनर, अगर आप सुन रहे हो तो। गोल्डन रूल कम्युनिकेशन का, when in doubt, remember the golden rule which says treat others the way you want others to treat you. I repeat, treat others the way you want others to treat you. ये गोल्डन रूल है कम्युनिकेशन में। वैसा ही बिहेवियर करो जैसे आप चाहते हो दूसरों का बिहेवियर हो, वैसी ही हैबिट्स अपने अंदर डालो जो आप चाहते हो दूसरों की हैबिट्स हो। जैसे मेरे बॉस है जिनको हमेशा लेट आने की आदत है, ऑफिस में हमेशा लेट आते, लेकिन वो स्टाफ से एक्सपेक्ट करते कि वो टाइम पे आए, ठीक है? डू यू थिंक द स्टाफ विल हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम, द सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम? नो। अगर वो लेट आता है स्टाफ, और अगर आप चिल्ला रहे हो लेट कैसे आ सकते हो तुम, पता नहीं चलता है कि ऑफिस का टाइमिंग ये है, और आप खुद लेट आते हो, सो एक नॉन वर्बल क्लू, नॉन वर्बल क्लू बॉस दे रहा है एम्प्लॉइज को कि लेट आओगे तो चलेगा। बोल नहीं रहा है, वर्ड्स में नहीं बोल रहा है, बट नॉन वर्बल इज मोर पावरफुल देन वर्बल, गेटिंग? सो इसीलिए मेरे हिसाब से कभी समझ नहीं पड़े ना तो ये गोल्डन रूल यूज कर लेना, लोगों को ऐसे ही ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो लोग आपको ट्रीट करें। तो अगर मैं लेट आता हूं तो चलता है, तो कभी अगर एम्प्लॉय लेट आए तो चलना चाहिए, राइट? अगर मैं अपने कलीग को बोलूं मेरा काम कर दे, और मेरा कलीग मुझे मना कर देता है, હું કેમ કરું તારું કામ, પોતાનું કામ પોતે કરવાનું, ठीक है? आई गॉट ट्रीटेड दिस वे कि मुझे किसी ने बोला मेरा काम मुझे खुद करना चाहिए, मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा। डिड आई लाइक इट? नो, आई डिड नॉट लाइक इट। हाउ डिड आई वांटेड टू बी ट्रीटेड कि हाँ शांभवी તમને જલ્દી જવાનું છે આજે, લાવ તમારું કામ કરો। आई वॉन्टेड टू बी ट्रीटेड लाइक दैट, मुझे चाहिए था कि मुझे ऐसे कोई ट्रीट करे, राइट? सो आई हैव टू ट्रीट अदर्स दैट वे। सो हमको दूसरों को वैसे ट्रीट करना है जैसे हम चाहते हैं दूसरे हमको ट्रीट करें। सो अगर कोई इंसान लेट हो रहा है ऑफिस में, कोई इंसान को जल्दी जाना है, कोई इंसान परेशान हो रहा है, सो हमको देखना है कि हम उसकी हेल्प करें। दैट इज अ गोल्डन रूल। टाइम की कमी, आई ट्राई टू गो फास्ट। ओके, चलो ऑफिस कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है ये। मैनेजर बोला गुड मॉर्निंग बिल, तो यहाँ पे जब वो बोलता है गुड मॉर्निंग बिल, नाम ले रहा है, तो वो एस्टैब्लिश कर रहा है लिंक। गुड मॉर्निंग सबको नहीं, बिल को गुड मॉर्निंग, राइट? फिर वो बोल रहा है योर डिविजन नंबर्स आर लुकिंग ग्रेट, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है इमोशंस, राइट? एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहा है। फिर वो बोल रहा है आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्डर मोर प्रिंटर्स, could you place an order of 1000 printers and printer toners and cartridge with John computers? Our budget for the purchase is 30,000 and the cartridge needs to be here by Wednesday afternoon. इस कम्युनिकेशन में 3 टास्क है। 1000 प्रिंटर का ऑर्डर देना है, जॉन कंप्यूटर से ही, जोनस कंप्यूटर से ही लेना है, और अपना बजट 30,000 है, और वेडनेसडे के पहले पहले आ जाना चाहिए। मतलब टोटल 4 टास्क, राइट? सो अगर मैं सुन रही हूं, इफ आई एम लिसनिंग टू माय बॉस, मैं लिखूंगी 1000 प्रिंटर, ओके सर, इस कंप्यूटर सप्लायर से, ओके सर,
30,000 अपना बजट है, ओके सर, और वेडनेसडे के पहले आ जाना चाहिए, ओके सर। 4 टास्क, 1 कम्युनिकेशन, गेटिंग? सो अब बिल देखो नीचे बोल रहा है श्योर सर, वापस रिपीट कर रहा है कि मैं 1000 प्रिंटर, इतने कार्ट्रिज इस कंपनी से 30,000 में वेडनेसडे के पहले ले लूंगा। नाउ दिस इज अ ऑफिस कम्युनिकेशन। बॉस ने पहले एस्टैब्लिश किया लिंक, इमोशनल को अच्छी तरह से एस्टैब्लिश किया, अपना टास्क को पूरी तरीके से तोड़ तोड़ के बताया, इतने कंप्यूटर्स यहां से इतने पैसों में इतने टाइम में। और बिल जो सुन रहा था और वो एक्टिव लिसनर था, उसने ये रिपीट किया। जैसे आपको कोई मैसेज फॉर्मल मिलता है, आपको हमेशा आदत होनी चाहिए लिखने की। डोंट बी सो डिपेंडेंट ऑन योर मेमोरी, यू हैव टू राइट। जैसे आपने लिखा वैसे ही जब आपको रिपीट करना है, तो जो आपने लिखा उसको आपको रिपीट करना आसान हो जाता है। सो ऑफिस कम्युनिकेशन में प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग एवरीथिंग दैट यू गेट अ मैसेज ऑन फोन या वर्बली। सर आए, बॉस आए और कुछ बोल के चले गए, अरे यार 1 कलाक पहला सर आया था, शू बोलने गया था, तू तो भूल ही गई। अगर आप ऐसा एटीट्यूड दिखाओगे कम्युनिकेशन का, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं गिना जाएगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा। आप दोबारा सर को जाओगे पूछने के लिए, वो डांटेगा आपको, अभी तो मैंने बोला, हाँ लेकिन मैं भूल गई सर, मैं काम में थी ना सर, आपने ऑलरेडी मुझे इतना सारा काम दे के रखा है, मैं क्या करूं? वो मेरा काम नहीं है, मैं तो बॉस हूं, राइट? सो जब भी आपको कोई भी कुछ बोलता है, पेन और पेपर साथ में होना चाहिए, तुरंत लिख देने का, ताकि आप भूलो नहीं। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब भी आपको टाइम मिलता है उस काम को करने के लिए, तो वो लिखा हुआ है, यू विल नॉट फॉरगेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डूज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी, कपड़े पहनने का स्टाइल ग्रूमिंग में आता है, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। सो आपको पता होना ही चाहिए। ऑफिस में जैसे ही जाते हो ना, आजू बाजू देख लो कि लोगों ने किस टाइप के कपड़े पहने, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं, राइट? सो वेल ग्रूम पर्सनालिटी पहली है, इसीलिए हम बोलते हैं फॉर्मल्स में जाओ, शर्ट एंड ट्राउजर। लड़कियों को बोलते हैं ड्रेस में जाओ, या वेस्टर्न वेयर में भी जा सकते हो, एनीथिंग बट फॉर्मल। बहुत चमचम वाला, बहुत कलर्स नहीं, 2 या 3 कलर से ज्यादा शरीर पे कलर होना ही नहीं चाहिए। तीसरा कलर हो गया खत्म, योर स्टोरी एंड्स देयर, राइट? सो ग्रूमिंग, चप्पल बजनी नहीं चाहिए, टिक टाक टुक टाक नहीं होनी चाहिए, फाइन? कोई भी चीज ऐसी पहननी नहीं है, बोलनी नहीं है या करनी नहीं है जिससे अटेंशन लोगों का आप पे आए। जैसे मैंने लंबी लंबी बड़ी बड़ी इयररिंग्स पहने, राइट, या मैंने बाल अपने खुले रखे और यूं कर रही, अटेंशन लोगों का खींचेगा, राइट? मुझे नहीं करना है। आसान है ना याद रखना, सिंपल। बहुत झम 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 पहना है, अटेंशन लोगों का खींचेगा, मुझे नहीं करना है। रेड कलर पहना है, टी शर्ट शर्ट रेड कलर का शर्ट, येलो कलर का शर्ट, अटेंशन खींच रहा है, नहीं करना। जिसे भी आपका ज्यादा अटेंशन लोगों का आप पे गिरे, वो काम आपको करना ही नहीं। आपका चप्पल बज रहा है, अटेंशन खींचेगा, नहीं, आपका चप्पल बजना नहीं चाहिए, सिंपल रूल, राइट? चलो फिर रिस्पेक्टफुल एंड हम्बल। अच्छा, जब मुझे मैम ने बताया था कि मुझे आपका सेशन लेना है, तो मैंने करीब 2 से 3 एचआर से बात की थी, जो अच्छी अच्छी कंपनी में एचआर है, जैसे फ्यूचर ग्रुप वाले, उनसे बात की थी। एक बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉल सेंटर हैंडल करते हैं, उनसे मैंने बात किया कि भाई जब कोई स्टूडेंट आपके वहां पे जॉब करता है तुरंत, सो आप क्या मिनिमम चीज आपसे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो? Because I really wanted to tell you that what is the minimum thing that any company expects from him. और ये वो मिनिमम चीजें थी जो उनसे मैंने बोलते ना, उन्होंने कही और मैंने लिखी, राइट? सो रिस्पेक्टफुल एंड हम्बल बिहेवियर। हम्बल मतलब क्या? डाउन टू अर्थ। रिस्पेक्टफुल मतलब क्या? यस सर, जी सर। रिस्पेक्ट आपकी आवाज में है,
आपकी बॉडी में है और आप कितना हम्बल हो, ये एक ऑफिस में लोग पहले सबसे पहले ये नोटिस करते हैं कि ये बात कैसे करता है, टोन कैसा है, कलीग से कैसे बात करता है, फ्रेंडली है कि अकेला अकेला बैठता है, क्या व्हाट एग्जैक्टली ही इज, राइट। फिर पॉजिटिव अप्रोच, स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड, स्पीड लिखा है गलती से, इट इज स्प्रेड पॉजिटिविटी। मतलब जब भी जहां भी बैठता है उसके आजू बाजू क्या वो लोगों को पॉजिटिव रख रहा है या लोगों को नेगेटिव रख रहा है। जो मैं कीधું તું ને આજે વરસાદ આવશે જ, આજે તો પલટીને જ જવાનું છે, આ મારું તો નસીબ જ આમ છે। नेगेटिव के पॉजिटिव, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ क्या है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आपने चश्मा कौन सा पहना है, इस चश्मे से पता चलता है कि आप कोई भी चीज को कैसे देखते हो, पॉजिटिवली देखते हो कि नेगेटिवली देखते हो। सो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड एचआर देखता है कि या चीजों में प्रॉब्लम में चेयर बराबर નથી, આ કમ્પ્યુટર બરોબર નહીં ચાલતું, બહુ ધીરું ચાલે છે, આ પંખાની હવા નથી આવતી। દેખ ક્યાં રહ્યો કે મને ઓફિસમાં જોબ લાગી ગઈ અને આજે મારો પહેલો દિવસ છે, હું બહુ સારી રીતે કામ કરે છે, आई विल डू गुड, आई विल मेक नेम फॉर माई सेल्फ। फोकस कहाँ है, पंखे में है कि काम में है, नया चीज सीखने में। गोल ड्रिवन, बहुत इंपॉर्टेंट, गोल ड्रिवन। ओके, लेट मी टेल यू दिस वे। स्टूडेंट्स को अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपको ये जॉब क्यों करनी है, इंटरव्यू हैंडलिंग में तो समझा ही होगा ना, क्यों जॉब करनी है, तो वो कुछ तो बताते हैं। सी एक लाइफ, हम लोग वी आर अ लाइफ, एक लाइफ का एक गोल होना बहुत जरूरी है। अगर मेरी लाइफ का गोल नहीं है तो ऐसा है जैसे मेरे लाइफ में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी चलेगी पेट्रोल के बिना नहीं चलेगी, राइट। वैसे ही एक लाइफ में एक गोल बहुत जरूरी है। अब ये गोल बहुत सिंपल हो सकता है कि मुझे मेरे पैसों से एक्टिवा खरीदनी है, सिंपल गोल। मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए एक साड़ी और एक सूट खरीदना है। आपके लाइफ में छोटे छोटे गोल्स, पर्सनल प्रोफेशनल, कुछ भी होना चाहिए, क्योंकि यही है वो पेट्रोल जो आपकी गाड़ी चलाएगा। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर, दैट स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी गोल। जैसी पगार आ जाती है उस वो पगार को खर्च कर देंगे, उनका गोल ये होता है, बट दे आर नॉट ड्रिवन बाय देम। आपका गोल आपको ड्राइव करना चाहिए पैशन की तरफ। सो कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल होगा या कॉर्पोरेट की लेडर चढ़ेगा, ये वही इंसान होगा जिसका गोल ड्रिवन होगा। अगर आपके लाइफ में गोल है क्या नौकरी मળી જાય, 10-12 હજાર કમાઓ, બસ પતી ગયું, થઈ ગયું, આપણે બીજું કશું જોઈતું જ નહીં ને, બધા જબ જબ નહીં કરવાની, ऐसा अगर बच्चा है तो वो गोल ड्रिवन नहीं है, राइट। लोग बोलते, हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि शांति से जीवन हो, ज्यादा टेंशन करने का नहीं, शांति से जीने का, लेकिन उनका जो बोलने का मतलब है वो अलग है, राइट। मैं आपको जो बता रही हूँ अलग है। आप अभी अपनी लाइफ की करियर को शुरू कर रहे हो, आपके पास कोई पेट्रोल फुल होना चाहिए, एनर्जी का, पैशन का, सक्सेस का, इसका बोलते ना, इसका मजा लूटने का पैशन होना चाहिए अंदर, तभी जाके आप काम कर पाओगे। नहीं तो आप अगर 10-15 हजार के लिए काम करोगे तो वो आप काम अच्छी तरह से कर नहीं पाओगे। जब तक आपके अंदर भूख नहीं हो, इच्छा नहीं हो अपना नाम बनाने की, तब तक ऑफिस में यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल। अरे क्या मैडम, मारू काम तो करू छू ने बराबर, જોઈ લો कोई भूल नहीं थई मारी। ये एक बात, दिस इज वन थिंग दैट आप अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं, वेरी गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू, राइट।
और एक है गोल ड्रिवन। लाइफ में कुछ करना है ना, आई वॉन्ट टू बी वेरी सक्सेसफुल, I want that people should appreciate me for my work. I want to get recognition. I want to deliver my best. Goal driven, passionate, right? So ये जरूरी है और ये चीज देखी जाती है जब आप ऑफिस में बात करते हो तब। क्या आपके लाइफ में कोई गोल है क्या? डू यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ कि डू यू जस्ट वांट टू टाइम पास करना है? करना क्या है? 6 વાગ્યા છે, બસ હવે અડધો કલાક જ બાકી છે, ચલો ચલો ફટાફટ, અડધો કલાકમાં આપણે નીકળવાનું છે। ये एटीट्यूड है કે યાર આટલું કામ બાકી છે, આ પતાવવું છે, એના સિવાય હું ઘરે જઈશ જ નહીં, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता मैं घर नहीं जाऊंगा। ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड क्या है? फोकस एंड डिसिप्लिन। मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है, लेकिन ऑफिस में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप फोकस्ड नहीं रह पाते हो, आप डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो, इसलिए अभी आजकल ज्यादा कॉर्पोरेट्स में मोबाइल बाहर रख देने को बोलते हैं, राइट? बाहर लॉक एंड की में मोबाइल रखो फिर एंटर करो, बिकॉज वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। दे डीफोकस यू। सो आपका फोकस और डिसिप्लिन भी ऑफिस में बहुत चेक होता है। गुड लिसनर एंड अटेंशन टू डिटेल। देखो, हमने आपके कॉलेजेस में आपके पास बुक्स है ना, जिसको आप पढ़ते हो, लेकिन ऑफिस में आपको कोई पढ़ाता नहीं है, कोई नहीं पढ़ाता है। आपको काम सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, लेकिन कितनी देर देंगे? 1 घंटा, 1 दिन, 3 दिन, दैट्स इट। फिर आपको रोज का काम कैसे करना है वो देख के एंड बीइंग अ गुड लिसनर सीखना है। आपको अटेंशन टू डिटेल, कौन कैसे काम कर रहा है, किस डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे किसके साथ अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे, कौन मुझे इस ऑफिस में हेल्प कर सकता है, मैं किसके पास जाऊं, मैं किसको सवाल पूछूं, मैं क्या करूं जिससे मैं सीख पाऊं। अटेंशन टू डिटेल, बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन को आपको ऑब्जर्व करके अपने अंदर लेनी है बाय बीइंग अ गुड लिसनर। सुनना है ચોકસી પૂર્વક કે શું ચાલે છે, કેવી રીતે ચાલે છે, उसमें से नेगेटिविटी नहीं लेनी है, पॉजिटिविटी लेनी, राइट? प्रॉब्लम सॉल्वर। मेरे एक बॉस थे, जब मैंने अपनी लाइफ शुरू की थी एज अ करियर, तो उनका एक स्टैंडर्ड तरीका था। हम उनके रूम में जब जाते थे प्रॉब्लम लेके मतलब परेशानी लेके, काम दिया है हो नहीं रहा है, सो सर देखो ना, आपने तमे ये काम आपने दिया है बट हो नहीं रहा है, તમે આજે કામ આપ્યું હતું મારાથી થતું નથી, તમે જોવો ને હવે શું કરવું, મને નથી ખબર પડતી। प्रॉब्लम, राइट? सो जब भी हम प्रॉब्लम लेके जाते थे तो उनको पूछते थे क्या लेके आए हो, तो हम बोलते थे सर एक प्रॉब्लम। सॉल्यूशन साथ में लेके आए हो? नहीं सर, वो तो आप दोगे ना, मैं नहीं दूंगा। प्रॉब्लम तुम्हारा, सॉल्यूशन तुम्हारा, जाओ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ब्रिंग टुगेदर इन माय रूम। क्यों बॉस नहीं? मजा नहीं। प्रॉब्लम पण આપણું, સોલ્યુશન પણ આપણું, એ બસ હા પાડે કે હા આ સોલ્યુશન બરોબર છે। दिस इज द स्टाइल इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यही स्टाइल है। आप अगर किसी फ्रेंड को, या आई डोंट नो किसका एग्जांपल दूं मैं, किसी अपने छोटे से कजिन से, आपके जो छोटे भाई बहन है, वो कोई प्रॉब्लम लेके आओ, नेक्स्ट टाइम आप बोलना कि प्रॉब्लम भी लेके आओ और साथ में 2 सॉल्यूशन भी लेके आओ। सिर तो खुजाएगा थोड़ी देर के लिए, सॉल्यूशन पर મને આપવાનું છે, हाँ, पर आप देखोगे कि वो इतना क्रिएटिव सॉल्यूशन लेके आएगा जो आप सोच ही नहीं पाओगे। और आप, क्योंकि जिसका प्रॉब्लम होता है, मैं अगर इस प्रॉब्लम में हूं, राइट, सो मुझे ही पता है इसमें से निकलना कैसे है। आई एम द बेस्ट पर्सन टू टेल कि मैं यहां से कैसे निकलूं। मैं खड्डे में गिर गई, ठीक है, और बाहर कोई खड़ा है और मैं उसको बोल रही हूँ हेल्प हेल्प हेल्प, ठीक है, उसको क्या पता खड्डा कितना अंदर है, उसको क्या पता खड्डे के अंदर दलदल में मैं फंसी हुई हूँ, उसको क्या पता है इसकी वॉल चिकनी है,
उसको क्या पता मिट्टी कैसी है, उसको क्या पता आपके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे. He doesn't know your situation, you know your situation. So आप उसको बोलोगे हेल्प हेल्प, मुझे सीढ़ी आके दो, क्योंकि मेरे दो हाथ काम नहीं करते, तो तू मुझे रस्सी डालेगा तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा. हेल्प हेल्प, किसी और को बुला के दो मुझे. सो यू आर गिविंग अ प्रॉब्लम एंड अ सोल्यूशन. सो ऑफिस में कभी भी बॉस को बोलो प्रॉब्लम, दिमाग में सोल्यूशन भी होना चाहिए. अगर आपने ये सीख लिया, जो आप आज से ही ट्राई करना, जब भी प्रॉब्लम आए साथ में उसके दो सॉल्यूशन भी खुद ही पैदा कर लेना. एंड इफ यू डू दैट, यू विल बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन द ऑफिस. કે આ મસ્ત છોકરો છે, પ્રોબ્લેમ પણ લાવે છે સાથે બે સોલ્યુશન પણ લાવે છે. This is what you should be doing, right? I'm exceeding my time. I think that's okay. It's 3 o'clock. Yes, ma'am, you can continue. Thank you very much. Okay, so and then giving feedbacks or status of work done or undone. Again, ये सब HRs नहीं बोल रहे हैं कि ये जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू जनरेशन ऑफ किड्स जो अंदर आते हैं, उन लोगों को हम काम बता देते हैं. यस सर, यस सर, करते हैं. काम हो गया, नहीं हुआ, प्रॉब्लम आया, अधूरा हुआ, होने को है, कोई फीडबैक ही नहीं देते, बताते ही नहीं है. ठीक है, प्रॉब्लम पता चला तो जब नेक्स्ट दिन वो आपका बॉस आपको पूछेगा, मैंने तो कल काम दिया था, क्या हुआ? ऐसा सर એ તો થયું નહીં, મેં ટ્રાય કર્યું પણ આ એપ ચાલતો નહોતો. મેં બેનને આ કોલિગ છે ને રીટા બેનને મેં પૂછ્યું, એમને મને બતાવ્યું નહીં, એટલે મેં તો નથી કર્યું. तो ये बताना है ना, you have to give a feedback, you have to tell the boss that जो आपने काम दिया था वो नहीं हुआ है. तो बॉस पूछेगा कि तुम्हें મને કેવું તું ને, क्यों आपने मुझे बताया नहीं? सर તમે बिजी હતા ને, તો હું તમને કેવી રીતે ડિસ્ટર્બ કરું? મને થયું તમે મને પૂછશો, મને ખબર નહોતી કે મને કહેવા આવવાનું છે. મેં આ રીટા મેડમે કીધું તું કે મારાથી થયું નથી. ऐसे सब एग्जाम्पल्स, ऐसे सब एक्सप्लेनेशंस, ऐसे सब एक्सक्यूजेस स्टूडेंट्स देते हैं. राइट, एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपके घर पे आपकी मम्मी ने आपको बोला था टमाटर लेके आ, 500 टमाटर लेके आ. आप गए 20 रुपए लेके, 20 रुपए के 250 टमाटर आए. ठीक है, और आपने लिए और टमाटर वहां पे रख दिए और चले गए. मम्मी ने आपको 500 टमाटर लाने को बोला था. ठीक है, क्योंकि उसको 500 टमाटर की शायद जरूरत थी. अब वो जरूरत 250 टमाटर से खत्म होने नहीं वाली. फिर आपको फोन करेगी या बोलेगी, अरे आ तो બહુ ઓછા છે, તને 500 કિલો था. हाँ, पर मैंने पैसा मांगा तो હું શું करूं? क्या हुआ? ये गलती किसकी? मम्मी की या आपकी? मम्मी की, है ना? सब बोलोगे ऐसे ही. नहीं, आपकी गलती है, बिकॉज काम आपको दिया था. सही है, जब काम आपको देते हैं तो आपका रिक्वायरमेंट है कि हम काम करें. अगर अधूरा है तो बताए कि પણ મમ્મી તે મને પૈસા નહોતા આપ્યા એટલે मैं આટલા જ લાવ્યો છું, मैं पूरा काम खत्म नहीं कर पाया. चलेगा, काम हो जाएगा कि मुझे और पैसे दे, मैं फिर से मार्केट में जाके वापस लेके आऊं. सो कम्युनिकेशन का रोल आपका भी उतना ही होता है अगर काम आपको करना है तो, कि मेरा काम मैंने ढंग से किया कि नहीं किया. दैट ओनर्स इज ऑन मी. आर यू गेटिंग? सो नेवर गिव अ एक्सक्यूज और अ रीजन ऑफ नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क. ऑफिस में सभी हेड्स को, सभी एचआरस को यही प्रॉब्लम होता है कि काम नहीं करने के पीछे सभी स्टूडेंट्स एक्सक्यूज देते हैं. क्या एक्सक्यूज? जैसे मैंने आपको बताया अभी, रीटा ने मैडम મને કીધું જ નહીં, મને આ ઓપન જ ના થયું, मैं तो इन्हें कही દીધું તું. हाँ, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है. मुझे किसी ने काम दिया और मैंने किसी और को दे दी.
ठीक है, और मैं घर चली। एक बहुत ही एपिक एग्जांपल है, खैर बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज लैक ऑफ टाइम है अपने पास अभी। सो मुझे किसी ने काम दिया, मैंने वो किसी और को दिया, और मैंने सोचा कि मैंने काम किसी और को दे दिया, मेरा काम हो गया, मैं घर चली गई। वो बंदे ने, मैंने अपने बॉस को बताया नहीं कि मैंने किसी और को काम दिया है, उसको तो पता ही नहीं कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट है, उसने किया नहीं किया भगवान जाने, वो भी घर चला गया। नेक्स्ट दिन बॉस आके बोलता है, हाँ बोलो भाई काम दिया था क्या हुआ? सर मैं तो इन्हें आप ही दी तू मने नहीं खबर। क्या लगता है आपको, क्या इंप्रेशन है मेरा मेरे बॉस के सामने? अच्छा इंप्रेशन या गलत इंप्रेशन? अरे હું શું કરું, તમે મને કામ આપ્યું मैं तो इन्हें કહી દીધું। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने किसी और को बताया करने को, प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपने बॉस को नहीं बताया कि मैंने ये काम किसी और को दी। फीडबैक, स्टेटस, काम हो गया है या काम नहीं हुआ है, या मैंने किसी और को काम दिया है, तीनों चीजों का स्टेटस देना बहुत जरूरी है। अरे मैडम હું શું કરું, મારા બોસ તો કાયમ કેબિનમાં બેસ્યા હોય, I cannot disturb my boss every time કે સર કામ हो गया, સર ચાલે છે હો સર, સર કામ નથી થયું। I cannot disturb, you are right, you cannot disturb। at the end of the day you have to summarize every work, सारा काम को summarize करना है, और फिर उनको व्हाट्सएप, ईमेल, टेक्स्ट, जैसे भी आप अपने बॉस को पूछ सकते हो कि सर आप मुझे जो काम देते हो वो होगा नहीं होगा, मैं आपको कैसे बताऊं? हाउ डू यू वांट मी टू टेल यू? कैन आई टेक्स्ट यू? मैं एसएमएस डाल सकता हूँ सर आपको, या मैं शाम को जाने के पहले आपको बता के जाऊं? मैं कैसे बताऊं? आप अगर आप ऐसे अपने बॉस को बोलते हो तो ही विल फील यू आर वेरी डेडिकेटेड पर्सन, यू आर डिपेंडेबल, मैं इस पे भरोसा रख सकता हूँ, ये काम करने वाला बंदा है, और यही इंप्रेशन हम उनको देना भी चाहते हैं, राइट? सो इसमें जो मैं चाहती हूँ आप हमेशा याद रखो, ऐसी सिर्फ 3 चीजें। सबसे पहले गोल ड्रिवन, लाइफ में गोल होना जरूरी है अगर आपको अपने ऑफिस में आगे बढ़ना है तो, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों गोल। दूसरा फीडबैक देना, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, देना ही देना है, काम हुआ तो देना है, नहीं हुआ तो देना है, आधा हुआ तो देना है। और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्वर, अपना प्रॉब्लम भी लेके जाने का, 2 सॉल्यूशंस भी लेके जाने का। अगर आप ये 3 चीजों कर लेते हो, यू विल रियली एक्सेल इन योर ऑफिस वेरेवर यू। ओके, चलो, डोंट, लैंग्वेज सही यूज करना, डिस्ट्रैक्शन मत रखना, प्रॉब्लम को क्रिएट कभी मत करना, नेगेटिविटी नहीं लाना, ईगो इश्यूज, सेल्फ इंपॉर्टेंस, હું કેમ કહું, મને શું જોતું છે કહેવાની, ये 3 में जब आप काम करते हो, जब आप ऑफिस में काम करते हो, तो ऑफिस का जो गोल है, ऑफिस का जो काम है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेल्फ इंपॉर्टेंस। मैंने ये ईगो इश्यूज को बहुत रिसर्च किया था कि ये ईगो को मैं कैसे डिफाइन करूं, मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से कैसे बताऊं कि ऑफिस में ईगो मत लेके आओ। हाउ डू आई एक्सप्लेन इट? क्योंकि ईगो समझाना बहुत मुश्किल होता है, समझा नहीं सकती मैं किसी को व्हाट इज ईगो। तो मुझे लगा सेल्फ इंपॉर्टेंस। सो जब आप ऑफिस में होते हो तो सेल्फ इंपॉर्टेंस के ऊपर ऑफिस का काम रखो, बिकॉज ऑफिस इज अ टीम, 10 लोग साथ में आके काम कर रहे हैं और एक कॉमन गोल को अचीव कर रहे हैं। तो आप अपना इंपॉर्टेंस को ऑफिस के काम की इंपॉर्टेंस से ज्यादा ऊपर मत करना, मतलब ऑफिस का काम इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेल्फ इंपॉर्टेंस। ये एक चीज आपको बहुत अच्छी आसानी से कॉर्पोरेट का लेडर चढ़ने में हेल्प करेगी। जिसके लाइफ में ईगो इश्यूज नहीं होते वो ही इंसान प्रमोशन लेता है। मैं गुजरात को हेड करती थी और मेरे नीचे 10 ब्रांचेस थी।
2012 में जब मैं लीड करती थी, कॉर्पोरेट में थी तब, तो 10 ब्रांचेस की मैं हेड थी। और मुझे पता है कि जिन जिन बच्चों में, जिन जिन मैनेजर्स में ईगो इश्यूज होते हैं, मतलब सेल्फ इंपॉर्टेंस कंपनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उन लोगों का प्रमोशन रुकता है, रुकता है और रुकता है। जो अपना इंपॉर्टेंस कम रखते हैं, कंपनी का इंपॉर्टेंस ज्यादा रखते हैं, उनका प्रमोशन होता है, होता है, होता है। ओके, फिर कैजुअल एटीट्यूड, चाल से જોઈ લઈશું, અરે જ્યારે प्रॉब्लम आवे ત્યારે कैजुअल, सब चलता है, एवरीथिंग इज ओके। ये एटीट्यूड ऑफिस में नहीं चलता, घर में चलेगा। अगर आपने ऐसा कैजुअल ले लिया, बॉस तो बोले હવે એમાં શું, એનું તો કામ છે બોલવાનું। कैजुअल एटीट्यूड, इफ यू कीप हैविंग दिस एटीट्यूड, आपके करियर में वो रोड़ा बने। ठीक है, फिर अनप्रोफेशनल। अनप्रोफेशनल मतलब, ये सब इतने भारी शब्द है, मुझे बहुत टाइम चाहिए, बट आई एम ओके। फोकस ऑन पर्सनल थिंग्स, बहुत आसानी से बता रही हूं मैं। जो अपनी पर्सनल चीजों पे ज्यादा ध्यान रखते हैं वो अनप्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, टाइम ड्रिवन, 6 વાગે 15 મિનિટ થઈ છે, 6 વાગે 20 મિનિટ, 6 વાગે 30 મિનિટ, ચલો જઈએ। टाइम ड्रिवन, अनप्रोफेशनल, स्प्रेड्स नेगेटिविटी। तने खबर છે શું થયું? अनप्रोफेशनल, राइट? नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, दूसरों के पर्सनल इश्यूज को ऑफिस में लेके आते हैं, अनप्रोफेशनल, राइट? स्पीक टू मच, बहुत बोलते हैं बिना ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव ही डामाडोल है ही नहीं। कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हो पता नहीं, बातचीत क्यों कर रहे हो, टाइम पास। जिन लोगों को कम्युनिकेशन टाइम पास के लिए करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और वो ऑफिस में अगर आप कर रहे हो तो अनप्रोफेशनल है। सो प्रोफेशनलिज्म अपने आप में एक दिन ले लूं मैं, राइट? हाउ टू बी प्रोफेशनल, हाउ टू वर्क प्रोफेशनली। बट आपके लिए ये 3-4 चीजें याद रखने के लिए कि अपने पर्सनल चीजों पे ध्यान बहुत मत दो, राइट? टाइम क्यों देख के काम मत करो, काम करने आए हो काम करो, घड़ी को घर पे रखो। नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो, और बहुत ज्यादा मत बोलो। शब्द एक एनर्जी है, शब्द ना एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। आपका एक एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड है। वर्ड्स आर लाइक स्वॉर्ड, आराम से यूज करना, कम यूज करना। इस पावर को, इस एनर्जी को संभाल के रखिए, ताकि जब जरूरत हो तब वो यूज कर सके, राइट? चलो, वर्बल एंड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन कब यूज करते हैं, कौन सा? जब आपको फैक्ट्स बताने होते हैं तब आप रिटन लेते हो, और जब आपको इमोशंस और फीलिंग्स बताने होते हैं तब आप वर्बल लेते हो। ओके, मैं इसकी थोड़ी भूमिका बांधूंगी कि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम क्या करूं, फोन करके बताओ कि ईमेल करके बताओ? सही है ना? आपको एक क्वेश्चन आएगा कि मैडम मने रजा जोईती थी, फोन करीने कहूं कि ईमेल करीने कहूं, रिटर्न करूं कि वर्बल करूं कैसे, हाउ डू आई? ये क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में आएगा। तो ये आपके लैंडमार्क्स है कि जब आपको कुछ फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको रिटर्न देना है, जब आपको इमोशंस और फीलिंग देनी है तो आपको वर्बल। ठीक है, मैसेज नीड्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ परमानेंट फाइल। कोई मैसेज है जो परमानेंटली कहीं पे लॉग हो जाने वाला है, किसी फाइल में हिस्सा बनने वाला है, तो वर्बल है। और जो मैसेज, जो इंफॉर्मेशन फाइल में जानी जरूरी नहीं है तो वो वर्बल है, और परमानेंट जाने वाली है तो वो रिटर्न है। अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है तो रिटर्न डालने का, एकदम अर्जेंट है तो फोन घुमाने का। सही है ना भाई? कुछ अर्जेंट मैसेज आया है तो आप ईमेल थोड़ी ना करोगे, एसएमएस थोड़ी ना करोगे, उसने पढ़ा नहीं तो क्या करोगे आप? इट्स अर्जेंट तो यू हैव टू कॉल। डू नॉट नीड इमीडिएट फीडबैक।
रिटर्न तब जब इमीडिएट फीडबैक नहीं चाहिए, और वर्बल तब जब इमीडिएट फीडबैक चाहिए। भाई पार्सल पहुंचा, खोल के देखा, सब बराबर है, वर्बल। When you get the parcel, check and revert back if the content, if the parcel is intact or not. Return 10 दिन बाद भी उसका जवाब देगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। आइडियाज आर कॉम्प्लिकेटेड। जब आपका इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटिंग है, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे लिख के बताना, क्योंकि वर्बल में कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं जब आप कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं करते। ठीक है, क्या वो बड़ी इंफॉर्मेशन है यार, फोन ऊपर कई से तने समझा से नहीं होता है कि नहीं, तू मने એવું कर एसएमएस मोका, एड्रेस, किसी के घर पे जाना है और एड्रेस वो समझाओ फोन ऊपर, अरे ना ना फोन ऊपर नहीं, तो मैंने एसएमएस मोका। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट है, अपार्टमेंट नंबर, लेन नंबर, नियर, बिहाइंड, एरिया, इतना सारा चीजें मैं याद नहीं रख पाऊंगी। आई वांट इट इन अ फॉर्मेट वेयर आई कैन रिवर्ट बैक, थोड़ी देर के बाद वापस पढ़ सकते। आई गेस इट इज क्लियर कि कब रिटर्न रखना है, कब वर्बल रखना है, राइट। रिटर्न कम्युनिकेशन, हाँ, जो एचआर से मैं बात कर रही थी कि भाई ये रिटर्न कम्युनिकेशन का क्या सीन है, मतलब व्हाट, हाउ डू आई और व्हाट मिस्टेक्स दे डू, तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही बताई कि बहुत ज्यादा नहीं लिखे, कम से कम लिखे। यहाँ पे थॉमस बोलते हैं डोंट यूज टू वर्ड्स व्हेन वन विल डू। अगर आपको लिखते वक्त दो शब्द की जगह पे एक शब्द यूज करना है तो एक ही शब्द यूज करो। सो ईमेल में, एसएमएस में, व्हाट्सएप पे, कहीं भी रिटर्न कम्युनिकेशन आ रहा है, सो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम शब्द में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाए, बड़ा बड़ा लंबा लंबा नहीं, राइट। सो ये है आपके डोंट्स। सबसे पहले फॉरवर्ड, अच्छा हम क्या बात कर रहे हैं अभी, रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफिस में, दैट इज फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन की बात होगी। ओके, कभी भी सेंड एंड फॉरवर्ड को बार बार यूज नहीं करना, जरूरत है तो ही फॉरवर्ड करना है, नहीं तो सेंड करना। फॉरवर्ड मतलब पीछे के सारे मेल्स आगे जाते हैं। सो आपको दिमाग लगाना है कि मुझे सेंड करना है कि मुझे फॉरवर्ड करना है, दोनों चीजें एक नहीं है, दो अलग चीजें हैं। Put anything in an email that you don't want the world to see. अक्सर बहुत सारे लोग ऐसा कुछ लिख देते हैं, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे बैंक अकाउंट नंबर एग्जाम्पल, जो आपको बॉस को देना है, लेकिन आपने गलती से फॉरवर्ड टू ऑल कर दिया। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आप नहीं चाहते हो लोगों को पता चले, वो आपको लिखनी ईमेल में नहीं, because email is a proof which is going to be there, right? So you don't have to do that. फिर कभी भी मैसेज कैपिटल शब्दों में नहीं लिखना। जैसे मैंने देखा है लोग अपना नाम कैपिटल में लिखते हैं या नीचे थैंक यू कैपिटल में लिखते हैं। कैपिटल में लिखना ही नहीं है कुछ भी, टाइटल केस में ही लिखना है या नॉर्मल केस में ही लिखना है, ठीक है। कभी भी सीसी करते हैं, पता है ईमेल में, मतलब बॉस को लिख रहे हैं सीसी टू ऑल, नहीं, रूटीनली नहीं करना। आपको अपने बॉस को पूछना है सर मैं ये सीसी में लिखूं क्या किसी को, गॉट इट। तो सीसी शब्द आप आराम से यूज करना, ओके। फिर do not make your request, do make your request in first line, do make your request in first line of your email। जब भी आप कुछ रिक्वेस्ट करते हो तो आपको शुरुआत ही करनी है उसी से, आपको रिक्वेस्ट शुरुआत में ही करना है। सब्जेक्ट लाइन जो होता है ना सब्जेक्ट, वहां पे आपका मैसेज क्लियरली आ जाना चाहिए कि जो सब्जेक्ट लाइन पढ़ू ना मैं, तो मुझे पता चल जाए कि ये मैसेज किस बारे में,
लोग अक्सर सब्जेक्ट लाइन ब्लैंक छोड़ देते हैं, अक्सर 80% टाइम सब्जेक्ट लाइन इज ब्लैंक। ऐसा नहीं, मैसेज क्या है, लीव चाहिए मुझे, सो रिक्वेस्टिंग अ लीव, सब्जेक्ट लाइन, गेट इट? ओके, फिर ओके, डू नॉट ईमेल थैंक यू। अगर आपको करना है, अगर डू है, थैंक यू लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, हमेशा मेल लिखो, थैंक यू, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, यही फॉर्मेट है जो प्रोफेशनल फॉर्मेट गिना जाता है। ताकि आपको वेंडर मतलब ऑफिस के बाहर मेल हो रहा है या ऑफिस के अंदर मेल हो रहा है, अगर आपको उस मेल के लिए किसी को फोन करना है या कांटेक्ट करना है, तो वो बहुत इजीली और फटाफट कांटेक्ट कर ले, राइट? फिर binding, do not think of work email as binding communication, that's okay. Do let other know if you received an email in an error. हाँ, अक्सर मैंने देखा है जब आपको कोई ईमेल आता है जिसमें कुछ गलतियां हैं, तो सामने वाले इंसान को आपको बताना है कि गलती है, और आपसे अगर कोई ईमेल लिखते हुए गलती हुई है तो भी सामने वाले को बताना है कि भाई मेरे से ये गलती हुई है, क्योंकि ईमेल कम्युनिकेशन इज अ रिटर्न कम्युनिकेशन, राइट? आपको दोनों ही तरफ में गलत ईमेल आए या गलत ईमेल जाए, यू हैव टू इन्फॉर्म द अदर पर्सन अबाउट द रॉन्ग थिंग। So that is it. Thank you very much. I guess I don't know if we have time for question answer. So I'll stop sharing, I guess. Okay, I think students don't have any doubt. Let us wait for 1 or 2 minutes if they can drop a message over here. Yeah, I hope I added value. Yes, ma'am, a lot. You clear all the doubts, or you give different insights about communication, business etiquettes, emails etiquettes, and everything. So I hope students would have learned a lot from you. It was a learning for us also, because we Thank also you. make many mistakes unknowingly, but yes, we get trapped. So somewhere it was important for us also. So thank you, ma'am. Thanks a lot Thank you for very giving much. deep insights about communication and etiquettes. We are very much thankful to you and hope to see you soon in some other lectures. Yeah, Certainly, thank you. pleasure will be mine. Thank, yeah, If you, thank. if any two faculties who are joining the program, if you Mm-hmm. can send me a feedback, that would be Sure, really. ma'am. Sure, ma'am. I'll share feedback. We have a group of people, students who have participated. So whatever they will write, I can forward it to you. No problem. Thank you very much. Thank you very much, Yeah. everybody who was attending. And if you have whatever feedbacks you have, do share. What I really wanted from you is three learnings that you learned today. अगर आप फीडबैक में मुझे वो तीन चीजें लिख के दे दो कि हमने ये तीन चीजें सीखी, दैट विल बी अ what an appreciation, or that is what I would really love to know. Yeah, ma'am. Okay, thank Sure, you very ma'am. much. Thanks a lot. Yeah. Bye Bye bye. bye. Signing off.